Welcome to Yasmin Simplifies. In the first video, I have already taught you how to multiply the binomials, how to deal with them, and I have also dealt with few identities, that is a plus b square and a minus b square. If you haven't watched that video, please go through that for better understanding of this portion. Now, I already told you squaring of binomial, that was a plus b ka whole square, or we can say a plus b into a plus b, which is very similar. Now, in this video, we will discuss a plus b and a minus b. Let's solve it normally, manually, जैसे normal बिल्कुल solving होती है. What is this? A x plus 3 and x minus 3. तो इसको अगर आइडियली सॉल्व करेंगे x minus 3 plus 3 x minus 3. I have already told you how this is done in the very first video. You can surely watch it and for better understanding of this part. I am repeating it again. उसके बाद x square minus 3x plus 3x minus 3 into 3, 9. This is cancelled. X square minus 9, right? X square, 9 is the square of 3. So 3 square. What ultimately we got? X square minus 3 square. X was A and 3 was B. We got x square minus b square. So identity जो ये है a plus b, a minus b, जब भी इसका प्रोडक्ट निकाला जाएगा आंसर विल बी a square minus b square. So you know, don't need to, there is no need to do this entire process to get here. There is no need to do that. You already know whenever there is expression like this, x plus 3, x minus 3, that is a plus b, a minus b, your answer will be a square minus b square only. So you have to remember this question like the previous identities. Previous identities कौन सी होती है? Let me repeat. A plus b का whole square. What was that? A square plus 2ab plus b square. A minus b का whole square था, जिसमें क्या था? A square minus 2ab plus b square. So these are the three identities you have to remember till now for the solving of the question. Let's understand. This is a very different type of question which is very randomly asked, and it is for good marks. It carries a good weightage. There are 2 to 3 questions that I am going to discuss ahead as well. So that type of questions are always asked, and these are the favorite questions of the teacher, especially अगर CMS में आप हो तो you are होता नहीं है आपके सामने समझिए क्वेश्चन पेपर ही रखा हो. It's like that. So find the value of a square plus b square. क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. और गिवन क्या है? ए प्लस बी. फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू क्या है? 12. और सेकेंड पार्ट दिया हुआ है ए माइनस बी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 18. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पैटर्न से ही होता है और कोई पैटर्न नहीं है इसका. हमें क्या पता करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. गिवन क्या? ए प्लस बी एंड ए बी. नाउ वी हैव टू अप्लाई दोज आइडेंटिटीज. पहले पोर्शन में क्या दिया हुआ है? हमें a प्लस बी दिया हुआ है. पहले पोर्शन में हमें a प्लस बी दिया हुआ है, तो वी विल अप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. व्हेन वी राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट वी गेट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. लेट्स सॉल्व इट फर्दर. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमें पता है क्या करना है? ये पता करना है. हमारे पास ए बी ऑलरेडी अवेलेबल है, ए प्लस बी की वैल्यू भी हमें दी हुई है. सो वी विल जस्ट पुट वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, इन दिस आइडेंटिटी. इसीलिए आई वाज टेलिंग यू कि रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज, बिकॉज इफ यू डोंट रिमेंबर देम यू वोंट बी एबल टू अप्लाई देम ओनली. ए प्लस बी की हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या दी है वैल्यू? 7 एंड ए बी की क्या दी हुई है? 12. ए प्लस बी का दिया है 7, ए प्लस बी की जगह 7 लिखा, स्क्वायर लगाया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दिया, क्योंकि हमें इसको पता करना है, इसकी वैल्यूज भी नहीं है. 2 और ए बी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास? 12. 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 12 इंटू 2 24. नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं 49,
24 इक्वल के इस साइड प्लस में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। 24 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एज पर पार्ट 1 की वैल्यूज गिवन, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 18। अब इसमें दिया हुआ है a माइनस बी, और जब भी हम a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं तो हमेशा साइन कहाँ पे चेंज होता था, माइनस टू ए बी के, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही आना है। नाउ वी हैव टू, a माइनस बी की जब वैल्यू दी है तो वी विल अप्लाई a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ a प्लस बी। तो लेट्स सी विद द क्वेश्चन, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर plus b square minus 2ab. We have to find this. We have the value of this. We have the value of a minus b. a minus b की क्या वैल्यू दी है 7, ab की वैल्यू दी है 18। a minus b की जगह 7 का होल स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab की जगह पे क्या 18 जो कि गिवन है। तो आया 49 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 18 टू 36। यहाँ पे माइनस है, राइट, इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा, equal to a square plus b square. So answer will be 49 plus 36, that is 85. This is the answer for the next part. So what we have done till now, we had to find a square plus b square की value. What was given to us, a plus b, ab first part में. तो here we applied a plus b का whole square. a plus b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, जहां पे जो जो वैल्यूज दी हुई थी वी हैव पुट, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ करके उसकी वैल्यूज निकाल दी। सिमिलरली सेकंड पार्ट में दिया था a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब आइडेंटिटी क्या थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद a माइनस बी की जगह पे जो वैल्यूज दी थी वो सारी पुट कर दी और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। सो दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, and this question is very crucial for your examination. Now let's see the next question. This is the most important question. Note it down, write it somewhere. Final exam आने वाला है तो ये question पक्का आएगा for sure. यहाँ पे क्या दिया, x minus 1 upon x का x minus 1 upon x equal to 3। हमें क्या पता करना है, x square plus 1 upon x square। सबसे पहले x minus 1 upon x equal to 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। यही पैटर्न है इसका करने का, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग हो रही है। अब a माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी माइनस 2ab होता है, 2 इंटू एक्स, 2 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, राइट। हमें क्या पता करना था, ये पता करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता करना है। यहाँ पे क्या बचा है, माइनस 2 इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 इस साइड गया पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचा 11। दिस इज दी आंसर। ये भी क्वेश्चन इसी पैटर्न से होता है और बहुत बार पूछा जाता है। रादर ये फॉर एग्जांपल अगर ये 3 मार्क्स में आ गया या 2 मार्क्स में आ गया तो दे विल ऐड सम पार्ट्स टू इट, कि ये x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया इक्वल टू 3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक और दे सकते हैं, फाइंड x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर, so stay tuned with that. If you are not getting or if you have any query, do comment in the comment box and write down your query. Your query will surely be solved. So as I told you कि they ask in parts also, sometimes exaggerate करते हैं इसको, x square plus 1 upon x square करा, फिर x raised to the power 4 plus 1 upon x raised to the power 4 करा। तो सबसे पहले इसके भी स्टेप्स होते हैं,
पहले इसकी स्क्वायरिंग करेंगे फिर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। लेट्स सी हाउ। पहले हमने क्या उठाया, x प्लस 1/x इक्वल टू 4। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 4 4 ज़ा 16। सिंपल हो गया, x और x ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। ठीक, 2 इधर प्लस में, इधर आके क्या माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14। तो ये हो गया हमारा एक वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पार्ट ए जो हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो हमारा क्या आ गया, इस तरीके से नॉर्मली जो हमने पहले पैटर्न बताया था वही पैटर्न फॉलो करके ये आया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट निकालना है, एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1/x रेस टू द पावर 4। अब इसको निकालने के लिए हम इस पे वर्क नहीं करेंगे, इसको निकालने के लिए हम इस पे वर्क करेंगे जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। सो दिस इज अ 2 स्टेप क्वेश्चन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो हमारा ये पहला स्टेप हो गया, दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए पे वर्क कर लिया। अब पार्ट बी पे वर्क करने के लिए हम x प्लस 1/x पे वर्क नहीं करेंगे, हम किस पे वर्क करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 14 है, राइट। हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1/x रेस टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। कैंसिल हो गया, एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1/x रेस टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 196। एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1/x रेस टू द पावर 4, ये इधर गया माइनस में, क्या बचा 194। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अगेन। x प्लस 4 की वैल्यू दी हुई थी, राइट। हमें क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1/x रेस टू द पावर 4। सबसे पहले हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड से। स्क्वायरिंग करी हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपली हो गया काम। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई, फिर हमें एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1/x रेस टू द पावर 4 निकालना था। तो हम इसको निकालने के लिए किस पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, इसी को स्क्वायरिंग करी दोनों साइड से एंड देन वी गॉट दी दिस आंसर। सो दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा आता है, जिस क्वेश्चन की ज्यादा वेटेज होती है उसमें दिस क्वेश्चन कम्स लॉट ऑफ टाइम। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें पूछते हैं व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब है कि इसमें इनको और क्या ऐड कर देना चाहिए जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो लेट्स सी, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा हम इससे देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो वी विल सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब देखते हैं, जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या है, नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। वी विल सी दिस थिंग, ठीक, इस पैटर्न से देखते हैं। अब इस पैटर्न से अगर देखा जाए 49x स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का,
तो यहाँ पे क्या हो गया 7x का होल स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर इज 49 स्क्वायर, 49x स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था -2, ये 42x है तो ये 2ab ही है, -2ab है तो -2, a की जगह हमने फाइंड आउट कर लिया कि 7x है, b की जगह पे ऐसा क्या होना चाहिए था जो यहाँ पे 42 आ जाए, तो 7 2 जा 14, तो 14 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, तो दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चला, इस एक्सप्रेशन से हमें अपना a पता चला, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7x का होल स्क्वायर हो गया 49x स्क्वायर, तो हमें ये 7x पता चल गया, मतलब a पता चल गया। ये जो ये एक्सप्रेशन होती है 20 की, तो 2ab होती है, 2 इसमें से पहले एक आया, फिर दूसरा आया क्या हमारा a, मतलब थर्ड कुछ ऐसे ही होना चाहिए था कि हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारा ये एक्सप्रेशन वापस आ जाए, तो हमने यहाँ पर 3 से करा क्योंकि 7 2 सा 14, 14 इंटू 3 इज 42, तो 42x आ गया, तो इससे हमें पता चला कि ये हमारा 2 ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी में, ये बन गया हमारा a, ऑलराइट, और b जो हमारा है वो ये है, सो दिस इज b, तो यहाँ पर प्लस में क्या आना चाहिए, b स्क्वायर होता है ना 3 का स्क्वायर, तो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या होगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज 9, इस तरीके से ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो व्हाट वाज देयर क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ऐड होना चाहिए 9 मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड 9 मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ perfect square, to make it a perfect square. So these are the type of questions के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं algebraic expressions के थ्रू। इसका बेसिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि किस हिसाब से उसके क्वेश्चंस करने चाहिए, किस हिसाब से सॉल्विंग करनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी do comment in the comment box. If you have not subscribed yet, to subscribe it for daily updates of the exam pattern and the syllabus, especially of CMS. And stay tuned. Thank you guys. Bye bye and take care.